Hello students, welcome to Akshay's concept classes. So in this video, I am going to solve few problems on the chapter motion, which is class 9th first chapter of physics. So without wasting time, let's get start. So before solving these problems, let's have a quick revision of all those formulas which I am going to use in order to solve these problems. So the first formula is speed equals to distance divided by time. So speed is basically the time rate change of distance, and from this formula we can write time equals to distance divided by speed. So now the unit of speed is meter per second, or you can take kilometer per hour according to the question. For example, if in the question we have given distance in meter, then we will take our speed in meter per second, or if in the question we have given distance in kilometer, then we will take speed in kilometer per hour. So now I am going to tell you how to convert kilometer per hour to meter per second. So in order to convert kilometer per hour to meter per second, we have to multiply by 5 by 18, or in order to convert from meter per second to kilometer per hour, we will multiply by 18 by 5. So now I am going to tell you the three equations of motions which I am going to use in order to solve these problems. So the first equation of motion is v equals to u plus at. So here the v is final velocity, u is initial velocity, a is the acceleration whose unit is meter per second square, and t is the time. So now the second equation of motion is s equals to ut plus half at square. So here s is the distance traveled by the object, u is the initial velocity, again t is the time, and a is the acceleration. And the third equation of motion is v square minus u square equals to 2 times as. Again here v is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration, and s is the distance covered by the object. So these are the few formulas which I will use to solve these problems. So now proceed to the problem. So you can see this is problem number first. So I am going to read it for you. A car travels 100 km at a speed of 60 km per hour and returns with a speed of 40 km per hour. So आप देख सकते हो फिगर में एक कार है जो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, कितनी स्पीड पे? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, ठीक है। और फिर ये रिटर्न आती है, वापस आती है, अगेन ये 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है वापसी में, और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये वापसी का डिस्टेंस कवर करती है। सो हमसे पूछा है कैलकुलेट द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। तो इस क्वेश्चन में वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। सो एज यू नो, एवरेज स्पीड क्या होती है आपकी? टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कैलकुलेट द टाइम टेकन ड्यूरिंग दिस जर्नी। तो देखिए सबसे पहले जो आपका कार है वो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। सो S1 इक्वल्स टू 100 किलोमीटर, और किस स्पीड से कवर कर रही है? स्पीड आपकी यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर है। सो स्पीड यानी v1 विच इज़ योर 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो वी हैव स्पीड, we have distance, so we can calculate the time by using the formula, you know, time equals to distance divided by speed. So here the distance is 100 and your speed is 60. So when we divide 100 by 60, what I get? I get 5 by 3. So here I get 5 by 3 hour. So I get T1. Now अब जो कार है वो वापस आती है, रिटर्न करती है, तो अगेन कितना चलती है? 100 किलोमीटर चलती है। सो S2 इक्वल्स टू 100 किलोमीटर, और कितनी स्पीड से आती है? यू हैव गिवन स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर। सो नाउ योर वेलोसिटी इज 40 किलोमीटर पर आवर। सो नाउ द टाइम टेकन इज T2। तो अब कितना टाइम लगेगा? T2 टाइम लगेगा। तो जो आने का समय था वो मैंने T1 ले लिया, अभी जो रिटर्न जर्नी है, वापसी वाली जो जर्नी है, इसका टाइम मैंने अभी T2 ले लिया। सो T2 क्या होगा आपका? जो भी डिस्टेंस है आपका S2 डिवाइड बाई जिस स्पीड से कवर किया है विच इज़ V2।
सो S2 आपका कितना है, अगेन 100 है, और वेलोसिटी आपकी कितनी यहाँ पे 40 है. सो 0 कैंसिल विद 0, सो 2 5s are 10 and 2 2s are 4. So here you get 5/2 hour. So now as you know the formula for average speed is, so I am going to write average speed equals to total distance cover. So you can see in this problem we have total distance equal to 100 plus 100 means 200 kilometer. So total distance is 200 kilometer upon my total time. So total time is T1 plus T2. So T1 is your 5/3 and T2 is your 5/2. So you can simply add 5/3 plus 5/2. Okay, so what you get, 200 divided by, so now you have to take the LCM of 5/3 plus 5/2. So after solving you will get 25 divided by 6. So finally what we get, 200 divided by 25 multiply by 6. So after solving this we will get 48 kilometer per hour. So this is the average speed of the car for the whole journey. So I think this question will be clear to you. So now let us move to the next problem. So you can see the problem. The distance between Delhi and Agra is 200 kilometer. So Delhi और आगरा के बीच का जो डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर है. ए ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 100 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर. तो जो ट्रेन है वो शुरू के जो 100 किलोमीटर है उसको 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करती है. देन क्वेश्चन है, हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 100 किलोमीटर सो एज टू एवरेज 70 किलोमीटर पर आवर फॉर द होल जर्नी. तो देखिए ये आपका दिल्ली है, आपको जो इस साइड पे दिख रहा है, और ये यहाँ पे आपका आगरा है, और दिल्ली और आगरा के बीच जो आपका डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर है. ओके, सो दिस होल डिस्टेंस इज 200 किलोमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा. और जो ट्रेन है आपकी वो स्टार्टिंग के 100 किलोमीटर तो 50 किलोमीटर पर आवर से कवर करती है. अब क्वेश्चन ये है कि जो नेक्स्ट 100 किलोमीटर है उसे किस स्पीड से कवर किया जाए जिससे जो एवरेज स्पीड है वो आपकी 70 किलोमीटर पर आवर हो जाए. तो आप सभी को पता है एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं हम, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम करके. तो यहाँ टोटल डिस्टेंस तो हमें पता है 200 है, लेकिन यहाँ पे मुझे टोटल टाइम नहीं पता, लेकिन मुझे एवरेज स्पीड गिवन है. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ कि स्टार्टिंग के जो मेरे 100 किलोमीटर है, सो S1 यानी स्टार्टिंग के मेरे कितना डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, और जो स्पीड है वो आपकी कितनी है विच आई डिनोट बाई V1. सो स्पीड यहाँ पे आपकी है 50 किलोमीटर पर आवर. सो यू नो कितना टाइम लगेगा आपको यहाँ पे T1. सो T1 इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाई 50. सो व्हेन यू डिवाइड 100 बाई 50 व्हाट यू गेट, सो हेयर यू गेट 2 आवर. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट 100 किलोमीटर we have S2 equals to 100 kilometer, but here we don't have the speed, so let us take it as V2 which we have to find. so यहाँ से आपका T2 क्या आ जाएगा, आपका डिस्टेंस हो गया 100 और आपकी वेलोसिटी कितनी है जो आपको कैलकुलेट करनी है उसको मैंने क्या नाम रख दिया, V2 नाम रख दिया. ओके, सो आपके पास यहाँ पे T1 और T2 आपको मिल गया. तो चलिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं. तो आप सभी को पता है जो आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, सो योर एवरेज स्पीड जो है वो आपका क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम. सो टोटल डिस्टेंस इज योर 100 प्लस 100 विच इज़ 200. तो टोटल डिस्टेंस तो आपका 200 हो गया अपॉन में टोटल टाइम. तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 घंटे लग रहे हैं और यहाँ पे 100 डिवाइड बाय V2 लग रहा है. सो हेयर 2 आवर्स प्लस, और यहाँ पे आपका कितना लग रहा है 100 डिवाइड बाय V2. और एक और चीज़ आपको यहाँ पे गिवन है, आपको यहाँ पे एवरेज स्पीड गिवन है. ठीक है, और एवरेज स्पीड आपको कितनी गिवन है, सो इन दिस क्वेश्चन यू हैव गिवन एवरेज स्पीड विच इज 70. तो 70 आपकी एवरेज स्पीड हो गई इक्वल्स टू 200 डिवाइड बाय, अब यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हो. आफ्टर टेकिंग द एलसीएम यू विल गेट 2V2 प्लस 100 एंड डिवाइड बाय V2. सो इट्स इजी मैथमेटिक्स, आप अपने आप कर सकते हो. उसके बाद देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये V2 नीचे से ऊपर ले जाएंगे हम. ठीक है, आप भी कर सकते हो. तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए 70 इक्वल्स टू 200 के साथ V2 चला जाएगा. सो 200 V2 एंड वी हैव डिवाइड बाय 2V2 एंड प्लस में 100. सो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया डिनोमिनेटर में. अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. सो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा आपका, 70 को 2 से करोगे तो 72 जा 140 V2 प्लस 70 को 100 से करोगे तो आपका 7000 हो जाएगा. यू विल गेट 7000
एंड इक्वल्स टू 200 V2 को 1 से करोगे तो आपका ये सेम रहेगा 200 V2, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सिमिलर टर्म्स को माइनस कर देंगे। सो 140 V2 को हम माइनस कर देंगे किस में से, 200 V2 में से। तो हमें यहाँ पे कितना बचेगा, वी विल गेट 60 V2 इक्वल्स टू 7000। ओके, सो हमें मिलेगा 60 V2 इक्वल्स टू 7000। सो फाइनली व्हाट वी गेट, वी हैव 60 V2 इक्वल्स टू 7000। अब ये 60 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ये दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। सो व्हाट वी गेट, 7000 डिवाइड बाई 60। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस व्हाट वी गेट, वी विल गेट 116.6 किलोमीटर पर आवर। सो जो आपकी ट्रेन है वो अगले 100 किलोमीटर को इतनी स्पीड से अगर कवर करेगी तभी आपकी जो एवरेज स्पीड होगी वो कितनी आएगी, 70 किलोमीटर पर आवर आएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। सो यू कैन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मोटरसाइकिल मूविंग विद a स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए एक मोटरसाइकिल है, जैसा कि आपको यहाँ पे फिगर में दिखाई दे रहा होगा, ये 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है। यानी इस मोटरसाइकिल की जो इनिशियल स्पीड है विच इज़ डिनोटेड बाय यू, इट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सेलरेशन। और अब यहाँ पे इस मोटरसाइकिल का एक्सेलरेशन होता है, यानी इसकी वेलोसिटी में चेंज आता है। तो एक्सेलरेशन आपका कितना आ रहा है यहाँ पे, सो यू हैव गिवन एक्सेलरेशन 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब आगे क्या पूछा गया, देखिए कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल आफ्टर 10 सेकेंड। तो हमें ये बताना है कि 10 सेकेंड के बाद मोटरसाइकिल की स्पीड क्या होगी और वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो देखिए जब भी एक्सेलरेशन होता है तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे जो हमारी मोटरसाइकिल है वो स्टार्टिंग में 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे चल रही थी, फिर हमारी जो मोटरसाइकिल है वो एक्सेलरेट करती है, यानी उसकी स्पीड इंक्रीज होती है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 10 सेकेंड बाद उसकी स्पीड कितनी होगी। तो चलिए अब हम यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज़ गिवन एज v इक्वल्स टू u प्लस at। ओके, सो व्हाट विल गेट, सो v इक्वल्स टू u, so here u is 5 plus acceleration is 0.2 and we have time, so time is how much, so time is here 10 second. So here we will remove the point, so what we get, 2 by 10, so 10 cancels out with 10, so what we get, 5 plus 2 7. So the velocity of the motorcycle after 10 seconds is 7 meter per second. Okay, but we have to also calculate the distance travel। तो यहाँ पे अभी हमें डिस्टेंस भी निकालना है। तो डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे विच इज़ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। सो दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो यू कैन सी हेयर अवर v इज 7, सो वी विल पुट 7 स्क्वायर माइनस अवर u इज 5, सो वी विल टेक 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 times a, so a is our 0.2 and s is the distance traveled which we have to calculate. So 7 square is 49 minus 5 square is 25 equals to, remove the point, what you get upon my 10. So here after solving what you get, you will get 4 by 10, here you get 4 divided by 10 and multiply by s. S is the distance covered. So 49 minus 25 is basically 24. So 24 equals to 4 by 10 into S. So now cancel out this, 4 1 are 4, 4 6 are 24 and after cross multiplying 10 6 are 60. So what we get, so the distance covered is 60 meter. Okay, so पहले पार्ट में हमने क्या कैलकुलेट किया था, पहले पार्ट में तो हमने फाइनल वेलोसिटी निकाली विच इज़ 7 मीटर पर सेकेंड, और दूसरे पार्ट में हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, डिस्टेंस विच इज़ अवर 60 मीटर्स। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक ट्रेन है हमारे पास जो पहले रेस्ट पे थी और फिर वो एक्सेलरेट करना शुरू करती है 5 मिनट के लिए, ठीक है। तो क्योंकि हमारी जो ट्रेन थी वो स्टार्टिंग में रेस्ट पे थी, तो इसका मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी होगी आपकी दैट इज़ 0, क्योंकि जो ट्रेन थी स्टार्टिंग में रेस्ट पे थी। और उसके बाद जो ट्रेन है वो एक्सेलरेट करती है, सो नाउ द एक्सेलरेशन इज गिवन एज 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद ट्रेन का एक्सेलरेशन इतना होता है और कितने टाइम के लिए होता है, 5 मिनट के लिए।
सो नाउ वी विल कन्वर्ट 5 मिनट्स इंटू सेकेंड. सो 5 मिनट में कितने सेकंड होंगे आप सभी को पता है. 5 इंटू 60 विच इज़ 300 सेकेंड है ना. तो 5 मिनट में आपके कितने सेकंड हो गए, आपके 300 सेकंड हो गए. कैलकुलेट द स्पीड एक्वायर्ड, तो हमें यहाँ पे स्पीड कैलकुलेट करनी है, मतलब हमें फाइनल वेलोसिटी v निकालनी है. सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. सो u आपका कितना गिवन है 0 प्लस एक्सेलरेशन आपका कितना गिवन है 0.2 और टाइम कितना गिवन है आपका 300 सेकेंड. ओके, पॉइंट हटा दोगे नीचे 10 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी. सो 32 जा यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 60. ओके, सो व्हाट यू गेट फाइनल वेलोसिटी एज 32 जा 60. सो फाइनल वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 60 मीटर पर सेकेंड. सो नाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड. So, in order to calculate the distance traveled, let us use the third equation of motion. So, third equation of motion is basically, as you know, v square minus u square equals to 2as. So, as you see, v is your 60. So, 60 का whole square. Then आपका जो u है initial velocity आपकी 0 है. Then 0 का whole square. Then we have 2 times a. A is your acceleration which is 0.2. एंड फाइनली यूर एस विच यू हैव टू कैलकुलेट. सो 60 का स्क्वायर हो गया 3600 एंड रिमूव द पॉइंट वट यू गेट 2/10. सो इट इज़ 2 to the 4/10 multiplied by s. So after solving this what we get, so here your s comes out to be 9000 meter. Okay, so your s will be 9000 meter and as you know 1 kilometer equals to 1000 meter. So you can also write the answer as 9 kilometer. Okay, so your answer is 9 kilometer. So here also we have calculate final velocity and distance traveled. उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बस रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर इज स्टॉप्ड इन 2.5 सेकेंड बाई अप्लाइंग ब्रेक. तो एक बस है जो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और उसके बाद उसको ब्रेक लगा के रोक दिया गया है. और कितने टाइम में बस को रोक दिया गया है यहाँ पे 2.5 सेकेंड में. सो कैलकुलेट द रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड. तो यहाँ पे हमें रिटार्डेशन निकालना है यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन निकालना है, क्योंकि आप सभी को पता है अगर यहाँ पे बस का ब्रेक लगेगा तो बस की जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो लगातार यहाँ पे डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे रिटार्डेशन होगा. तो देखिए यहाँ पे जो आपको स्पीड गिवन है वो गिवन है 18 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे जो आपको टाइम गिवन है वो आपको सेकंड में गिवन है. सो यू हैव गिवन टाइम इक्वल्स टू 2.5 सेकेंड. तो इसका मतलब यहाँ पे जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए. सो वी हैव टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड, क्योंकि आपका टाइम यहाँ पे सेकंड में है. तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा ताकि टाइम दोनों में सेकंड में हो जाए. ओके, और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं. सो 18 से 18 कैंसिल आउट हो गया. सो व्हाट यू गेट स्पीड एज 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, सो अब आपको v गिवन है, आपको t गिवन है. सो यू विल यूज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी. तो यहाँ पे जो आपका फाइनल वेलोसिटी है वो आपकी 0 हो जाएगी. फाइनल वेलोसिटी 0 क्यों हो जाएगी, क्योंकि बस का ब्रेक लगाए और ब्रेक लगने के बाद फाइनली जो बस है वो रेस्ट पे आ जाएगी. तो इसका मतलब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी. और इनिशियल वेलोसिटी यानी कि जो स्टार्टिंग में बस चल रही थी वो कितने पे चल रही थी 5 मीटर पर सेकेंड पे. तो u तो आपका 5 हो जाएगा प्लस a आपको कैलकुलेट करना है और t यहाँ पे आपका गिवन है 2.5. ठीक है, सो ये आपका 5 दूसरी तरफ चला जाएगा. सो ये -5 हो जाएगा. सो -5 इक्वल्स टू 2.5 इंटू ए. तो देखिए फाइनली आपके पास क्या बचा -5 इक्वल्स टू 2.5 इंटू ए. अब यहाँ पे आप पॉइंट हटा दीजिए, नीचे 10 आ जाएगा. अब आप इसको 5 से कट कर लीजिए. सो 5 5 जा 25 एंड 5 2 जा 10 और ये यहाँ पे 5 से 5 कट गया. तो फाइनली जो आपका यहाँ पे एक्सेलरेशन आया वो यहाँ पे आपका आ गया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो दिस इज योर नेगेटिव एक्सेलरेशन और यू कैन call it as retardation. Okay, so now let us move to the last question. So you can see the question is
ए कार इज ट्रैवलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग ए रोड। ओके, सो एक कार है जो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है एक रोड पे। ए चाइल्ड रन्स आउट इनटू द रोड 50 मीटर अहेड। तो देखिए एक बच्चा होता है वो कार के सामने भाग के आ जाता है और जो कार है वो बच्चे से कितनी दूर है, 50 मीटर दूर है। उसके बाद जो ड्राइवर है स्टेप्स ऑन द ब्रेक, फिर ड्राइवर आपका ब्रेक लगाता है, ठीक है। देन व्हाट मस्ट बी द कार डी एक्सेलरेशन इफ द कार इज टू स्टॉप जस्ट बिफोर इट रीचेज द चाइल्ड। तो देखिए यहाँ पे सिनेरियो कुछ ऐसा है, एक कार चल रही है, कार के सामने बच्चा आ जाता है 50 मीटर दूर, तो फिर ड्राइवर ब्रेक लगाता है और गाड़ी बिल्कुल बच्चे के पास पहुंचने से थोड़ा सा पहले रुक जाती है, मतलब जस्ट बच्चे को टच करने से पहले गाड़ी रुक जाती है। इसका मतलब हमें यहाँ पे एक चीज़ समझ आ गई कि ये जो कार है इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 50 मीटर, क्योंकि जैसे ही ब्रेक लगा और ये जैसे ही ब्रेक लगने के बाद गाड़ी रुकती चली गई, फाइनली जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, बिल्कुल बच्चे के पास जाके रुकी है, ठीक है। सो यहाँ पे जो कार है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो यहाँ पे आपको एस गिवन है विच इज़ योर 50 मीटर, 50 मीटर का डिस्टेंस कवर किया आपकी कार ने। और कितनी स्पीड पे चल रही थी ये, स्टार्टिंग में 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब यहाँ पे कार की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि वी हैव टू फाइंड द कार्स डी एक्सेलरेशन। तो हमें यहाँ पे कार का डी एक्सेलरेशन निकालना है, यानी रिटार्डेशन निकालना है, क्योंकि जब भी ब्रेक लगता है तो एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव होता है, क्योंकि हमारी स्पीड लगातार डिक्रीज होती है। जब हमारी स्पीड इंक्रीज होती है तो हम उसको एक्सेलरेट कहते हैं, और जब हमारी स्पीड कम होती है तो उसको हम रिटार्डेशन कहते हैं, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। सो हेयर फाइनल वेलोसिटी विल बी 0, क्योंकि ब्रेक लगाने के बाद फाइनली जो कार है वो बच्चे के पास पहुंचने के बाद रुक गई है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि कार फाइनली रुक चुकी है यहाँ पे। ओके, सो नाउ वी विल यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इन दिस केस। सो द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as. So this is our third equation of motion. So here our v is what we have to given. So here v is given 0. तो v आपका यहाँ पे 0 है, तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, माइनस u स्क्वायर, u आपका 20 है, 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 400 इक्वल्स टू 2a आपको कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन, और s कितना है आपका 50। ओके, सो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, देखिए -400 है इस तरफ, सो वी हैव -400 इक्वल्स टू 52 जा 100 और a आपका साथ में है, तो 52 जा आपका क्या हो गया 100 हो गया, एंड वी हैव a। सो अब ये 100 मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो ये 400 अपॉन में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, विच इज़ योर a। सो यू कैन गेट 4। सो हेयर a इक्वल्स टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो नेगेटिव साइन शोज देयर इज डी एक्सेलरेशन, और यू कैन से रिटार्डेशन, ठीक है। नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि जब गाड़ी का ब्रेक लगाया तो गाड़ी की स्पीड लगातार कम होने लगी और फाइनली गाड़ी हमारी रुक गई, इसलिए हमारी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो गई, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ए साइक्लिस्ट इज ट्रैवलिंग एट 50 मीटर पर सेकेंड। एक साइक्लिस्ट है जो 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे चल रहा है। शी अप्लाइज ब्रेक सो डैट शी डज नॉट कोलाइड विद ए वॉल 18 मीटर अवे। तो देखिए फिर वो साइक्लिस्ट ब्रेक लगाता है और ब्रेक लगाने के बाद वो बिल्कुल दीवार के पास जाके रुक जाता है जो उससे 18 मीटर दूर थी। तो साइक्लिस्ट ने 18 मीटर पहले ब्रेक लगाया और फाइनली कितना डिस्टेंस कवर किया ब्रेक लगाने के बाद, 18 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, 18 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। ओके, सो यहाँ पे भी हमें क्या बताना है, डी एक्सेलरेशन बताना है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक लगाए तो स्पीड कम हो गई, तो यहाँ पे भी डी एक्सेलरेशन निकालेंगे, ठीक है। अब स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी थी 15 मीटर पर सेकेंड, सो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, वी हैव 15 मीटर पर सेकेंड, दिस इज अवर इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद देखिए जो डिस्टेंस कवर किया है ब्रेक लगाने के बाद साइक्लिस्ट ने, वो 18 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, सो एस इक्वल्स टू 18 मीटर। और क्योंकि फाइनली साइकिल जाके रुक गई, अब फाइनली साइकिल जाके रुक गई तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल 0 हो जाएगी, ठीक है। सो अब हमें यहाँ पे डी एक्सेलरेशन निकालना है। सो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे हम, वी विल यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ओके, सो यहाँ पे v 0 है, आपका u कितना है 15, 15 का स्क्वायर करोगे तो आप 225 आ जाएगा। देन वी हैव 2 इंटू a तो हमें कैलकुलेट करना है, और s कितना गिवन है हमें 18। सो ये आपका आ जाएगा -225 इक्वल्स टू 18 2 जा 36a। सो a कितना आ जाएगा आपका -225 डिवाइड बाई 36। सो फाइनली आपका a कितना आ जाएगा -225 डिवाइड बाई 36, एंड आफ्टर डिवाइडिंग दिस व्हाट वी विल गेट, सो वी विल गेट 6.25।
Okay, so minus 6.25 meter per second square, because this is acceleration which has the unit meter per second square. So I hope you understand all these problems, or if you have any type of query, then post it in the comment section. I will definitely solve your query. Thanks for watching the video.